So chapter which we were doing was goodwill, its valuation and its treatment, nature. Goodwill, nature and valuation. And yesterday we discussed about how many methods we have seen. How many methods are there in the calculation of goodwill? Mainly three methods are there. One is average profit method, second is super profit, and third is capitalization. Yes. एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम अगले कितने पार्ट्स में सब क्लासिफाई कर सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एंड सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितने पार्ट्स हैं? सबडिविजन पार्ट इज देयर, ओनली वन पार्ट इज देयर, मेन जो है। एंड कैपिटलाइजेशन कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यस, बिल्कुल ठीक है। 5 पार्ट्स से हम ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं। अब वो सम जहाँ पे आपको डाउट्स है वो हमने करने हैं। एक हमने सम, मैंने कहा था सम नंबर कौन सा मैं करवाऊंगा? 13 यस, मैंने कहा 13 पकड़े पहले वो सम नंबर 13 ही says Geet and Meet are partners in a firm. They admit Geet into partnership for equal share. It was agreed that the goodwill will be valued at the 3 years purchase of average profit of last 5 years. Profit for the last 5 years were 90,000. Loss दिया हुआ है ये 160, 150, 65 and 177. जहाँ पे नहीं लिखा है वो प्रॉफिट है, जहाँ पे लॉस लिख दिया वो लॉस। Books of accounts of the firm revealed that the firm number 1 had gained profit of rupees 50,000 from sale of machinery sold in the year 31st March 17. The gain was credited in profit and loss. This is abnormal gain which will be deducted from that particular year. Second is, he says there was an abnormal loss of rupees 20,000 incurred in the year ended 31st March 18 because of a machine becoming obsolete in an accident. This is abnormal loss which will be added in the year 31st March 18. And last point is overhauling cost of second-hand machinery purchased on 1st July 18 amounting to rupees 1 lakh was debited to repairs account. इसका मतलब क्या है? कौन समझाएगा मेरे को? मतलब ये हमने 11th में रेक्टिफिकेशन में भी किया हुआ है, जर्नल में भी किया हुआ है। This is an error committed by the accountant. Now it is to be rectified. Yes, हर्षिता बोलिए बेटा। सर इसमें है कि हमने सेकंड हैंड मशीनरी ली थी, उसमें जो हमारी कॉस्ट लगी रिपेयर की उसको हमने रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, जबकि हमारी वो मशीनरी अकाउंट में आनी थी। वेरी गुड बेटा। Which should have been added in the machinery account. It means capital expenditure has been taken as revenue expenditure. ऐसा ही है ना? When we purchase the machinery and any expense paid on that machinery on the day of purchase is debited to machinery account only. एसआईडी बन जाती है ना? इंस्टॉलेशन चार्जेस कह लें, कोई फ्रेट वगैरह बोल दें, कोई वेजेस बोल दें, जो उस दिन मशीनरी को जो हम इंस्टॉल करवा रहे हैं या ऑयलिंग ग्रीसिंग कर रहे हैं, मशीनरी का पार्ट बन जाती है। कहता जो रिपेयर के लिए हमने पे किए थे 1 लाख रुपीस मशीनरी परचेज करने के लिए, वो हमने ऐड कर दिए रिपेयर्स अकाउंट में, जबकि ये कहाँ होने चाहिए थे? ये होने चाहिए थे आपके मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, मशीनरी बननी। अब जब हमने रिपेयर्स में ऐड कर दिए हैं वो, इट मींस कि उस साल का हमारा प्रॉफिट कम हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया होगा ना, तो कम हो गया ये। ठीक है, तो इट विल बी एडेड। फर्स्ट depreciation of adjustment will also be depreciation will also be done on the basis of written down value method. You have to calculate the value of goodwill. Format will remain same जो हम पहले कर रहे थे, year, profit, adjustments and adjusted profit. Prepare that. शुरू करिए उसको, लिखिए अमाउंट जो दी हुई है आपको। See, years which are given, profits which are given, and adjustments. Point number 1 देखिए, he says the firm had gained a profit of rupees 50,000 from sale of machinery sold in the year 31st March 17 and it was credited to profit and loss account. This is abnormal gain which will be deducted from the year ending 17, 31st March 17 minus, ये point हम पहले कर चुके हैं,
ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट भी हम कर चुके हैं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 31st March 18, एबनॉर्मल लॉस विल बी एडेड बैक प्लस 20,000 इन 31st March 18। जो यहाँ नया पॉइंट है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी जो थी which was purchased on 1st July 18, the date is very important here, amounting to 1 lakh was debited to repairs account, depreciation 20%। पहले भी बात करी that 1st July 18 को मशीनरी परचेज की गई 1 लाख रुपीज की, जो हमने रिपेयर्स में करते, रिपेयर में नहीं करनी थी, वो मशीनरी अकाउंट में ऐड होनी थी। रिपेयर करने से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट कम हो गया तो पहले हम ये 1 लाख रुपीज उस साल के प्रॉफिट में ऐड करेंगे। 1st July 18 जो डेट है, इट कम्स इन द ईयर 2018-19, इस साल में आ रही है। 18 वाले को 18 में मत ले लेना, इट इज आफ्टर 31st March 18। तो जो आफ्टर 31st March 18 है, दैट विल बी इन द सेशन 31st March 2018 एंड 19। तो ये 1 लाख रुपये यहाँ पे ऐड होंगे बिकॉज प्रॉफिट हमने इंक्रीज करने हैं अपने। ये पॉइंट क्लियर है, जो 1 लाख ऐड किए हैं, फाइन? Yes, and further he says depreciation is charged at the rate 20% per annum on written down value method। अब जब एसेट को हमने परचेज कर ली है, हमारी एसेट बढ़ गई है, तो वो डेप्रिशिएट भी होगी, और जब वो डेप्रिशिएट हो गई तो वो एक्सपेंस भी हमारा बनेगा, ऐसे ही है, तो वो एक्सपेंस जो है माइनस भी होगा। फाइन। इस साल में जब हमने मशीनरी परचेज करी है, इट हैज बीन परचेज्ड ऑन 1st July 2018 and has been used till 31st March 19. For how many months the machinery has been used? 9 months। 9 months। 9 months की depreciation निकलेगी। इसकी depreciation for the year 2019 will be 1 lakh into 20% into 9 by 12 means 15,000। and rupees 15,000 जो है वो हमारा एक्सपेंस बन रहा है एक साल का, तो वो माइनस किया जाएगा। 1 लाख एसेट थी, प्लस कर दी, प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो रहा है, और 15,000 बिकॉज ऑफ एसेट बन गई है तो डेप्रिशिएट भी होगी, डेप्रिशिएट होगी उसका एक्सपेंस जो माइनस किया जाएगा। एंड हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर 9 मंथ्स ओनली बिकॉज द एसेट हैज बीन परचेज्ड ऑन 1st July। फाइन। अब वो एसेट अगले साल भी थी हमारे पास, अगले साल भी थी बिकॉज इससे अगले साल डाटा भी हमें दिया हुआ है, तो अगले साल इसकी फिर लगनी है डेप्रिसिएशन। इस ऐसे वाले सम में जितने साल का डाटा हमारे पास हो उसको हर साल के लिए डेप्रिशिएट करना है। भाई अगले साल भी डेप्रिशिएट करना है। इट मींस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020 विल बी, उसने मेथड कौन सा बताया है, स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग बैलेंस? रिटर्न डाउन वैल्यू। डिमिनिशिंग बैलेंस में बताया उसने, रिटर्न वैल्यू इज डिमिनिशिंग बैलेंस। तो जो 1 लाख की मशीनरी थी उसको 15 से हमने डेप्रिशिएट कर दिया, द वैल्यू इज नाउ 85,000। It will be depreciated at the rate 20% on 85,000 because 85,000 is the written down value of that asset and will be charged for full year। full year के लिए चार्ज होगी because इस साल सारा साल यूज हुई है, तो अगले साल में ये depreciation माइनस होगी। It is the depreciation of year 18-19 15,000 rupees, 17,000 is the depreciation of the year 19-20। ये दोनों माइनस होंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट नया था, 50,000 20,000 वाला पॉइंट आप पहले कर चुके हो, ये 1 लाख वाला और इसकी जो डेप्रिसिएशन है और ऊपर से वो 2 साल की है। अगर यहाँ पे अगला साल भी एक और होता उसको भी डेप्रिशिएट करते और उसकी वैल्यू निकाल के 85 माइनस 17 तक उसको फिर निकालते। जितने साल का डाटा दिया हुआ है उसको डेप्रिशिएट हर साल करना है जब तक कि ये बताना दिया हो कि उस एसेट को हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद देन आर एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी देयर। फर्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 90,000 160 माइनस 50 110 सिमिलरली 170 150 एंड 160। तो टोटल प्रॉफिट्स आर 5 लाख। उसके बाद सेम है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख 5 लाख बाय 5 एंड गुडविल इज 3 इयर्स परचेज, तो 3 into 1 लाख रुपीज 3 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। चेक कर लीजिए बेटा, यहाँ प्रॉब्लम पूछ लीजिए। ये पॉइंट है, जो मेन पॉइंट आया है वो ये है और ये चेक करिए पॉइंट को, पूछिए। Yes, sum number 16. This says calculate goodwill of a firm on the basis of 3 years purchase of weighted average profit of last 4 years। ये आपने अंडरलाइन करना है यहाँ पे, how many number of years of purchase are there, 3 n की वैल्यू, और weighted average है या एवरेज है। Further he says the profits of last 4 financial years 31st March per
17 25,000, 18 27,000, 19 46,900, and 2020 53,810. The weights assigned to each year are 1, 2, 3 and 4 respectively. You are supplied the following information. ये points जो आपको given है सारा कुछ, years given, profits given and weights given. The adjustments we have to make. First point he says, first point same है जो हमने पिछले वाला point किया है, sum number 12 13 में. He says on 1st April 17, again date is very important here. पिछले सम में क्या था, 1 जुलाई 18 थी, 9 मंथ्स का बना था 31 मार्च तक, यहाँ 1 अप्रैल से हो रहा है तो फुल ईयर बनेगा. On 1st April 17, he says a major plant repair was undertaken for rupees 10,000, which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for the goodwill calculation, subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on written down value method. Same point, सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस है या एक डेट का डिफरेंस है. He says on 1st April 17, a major plant repair was undertaken. Which year it is? Session कौन सा बन रहा है? 1st April 17 means year ending 1st April 18, 31st March 18. Year ending 31st March 18. So during that year ending 31st March 18, हमने एक प्लांट की रिपेयर करवाई जो कि हमने रेवेन्यू कर दिया, उसको करना उसका कैपिटल आइटम था. इट मीन्स प्रॉफिट हमने कम कर दिया होगा, तो अब हम इंक्रीज करेंगे. इन द ईयर 31st मार्च 18 ये 10,000 रुपए उस चीज के हैं जो रिपेयर वाली अमाउंट को हमने कैपिटलाइज किया. डन, ठीक है ये. एंड फर्दर ही सेज सब्जेक्ट टू अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस. तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की लगेगी पहले साल में? फुल ईयर. फुल ईयर 12 from months. 1st April 17 up to 31st March 18. Depreciation is this rupees 1,000. 10,000 का 10% for full year. सेकेंड ईयर में कितनी लगेगी रिटर्न ऑन वैल्यू पे? रिटर्न ऑन वैल्यू इज 10,000 माइनस 1,000 9,000. तो 9,000 का 10% 900. ये भी ठीक है. अगले साल में 9,000 माइनस 900 8,100. 8,100 का 10% 810. मैंने पिछले समय में बताया था जितने साल आगे आपको दिए हुए हों उसमें अगर वो एसेट है हमारे पास तो डेप्रिशिएट करते रहना है उसको. पिछले सम में 2 साल की एसेट थी, एक जिस दिन परचेज की उस दिन 1 अगला साल था, यहाँ पे 3 साल की है. तो प्लस 10,000 द कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस ऑल डेप्रिसिएशंस कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड. पॉइंट इज क्लियर. नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2. The closing stock for the year 31st March 18 and 19 were overvalued by rupees 1,000 and 2,000. Closing stock has been overvalued. Now think about the profit and loss account or trading account. Rather trading account of last year. Closing stock किस साइड आता है? Debit side. Credit side. Closing stock. He says it has been overvalued, and when closing stock is overvalued, what is the effect of this on profits? Increase or decrease? Decrease. इंक्रीज. मौली, decrease कैसे? सर कम हो जाते क्योंकि क्रेडिट साइड पे है क्लोजिंग स्टॉक. ओवरवैल्यू हुआ ना. सपोज हमने यहाँ पे सेल थी 100 रुपीज की, स्टॉक था 50 रुपीज का, ये एक्चुअल में था. यहाँ परचेज ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस मिला के बन रहे हैं 80 रुपीज. एम आई क्लियर? एग्जाम्पल मेरी क्लियर है? ठीक है. मेरा प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे? 70 rupees. Say he says the closing stock has been overvalued. मैंने 50 को 60 लिख दिया, हो गया ओवरवैल्यू. What is the effect on the profit? कितना आएगा प्रॉफिट अब? 80. यस, पहले 70 था. यस 80 पहले कितना आ रहा था? 70. तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यू करने से जो मेरा प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ. मोली, इज इट क्लियर मोली? यस सर. यस सर. यस. जब हम क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यू करेंगे हमारी क्रेडिट साइड बढ़ेगी, इनकम साइड बढ़ेगी, तो प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा. अगर यही मैं क्लोजिंग स्टॉक को अंडरवैल्यू करता, मेरी इनकम साइड कम होती, तो प्रॉफिट मेरा कम होता. डन ये ठीक है पॉइंट. He says the closing stock for the year 31st March 18 and 19 were overvalued. तो मैं अपने प्रॉफिट को उस साल के लिए अब कम कर दूंगा because the profit was overvalued.
ज्यादा हो गया था, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, प्रॉफिट वाज आल्सो ओवर, तो मैं कम कर दूंगा। 18 में मैं 1000 कम करूंगा और 19 में मैं 2000 कम करूंगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट। ठीक है, ये 1000 क्लोजिंग स्टॉक वाला, ये 2000 क्लोजिंग स्टॉक वाला। आई होप इट इज क्लियर। फाइन। Yes, sir. नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये भी होता है, सभी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। And if suppose closing stock is overvalued of 1 year, it means the opening stock of next year is overvalued. ऐसा ही है? Is it clear? When opening stock is overvalued, what is the effect on the profit? It will decrease. डिक्रीज हो जाएगा, उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ये 1000 अगले साल का, और अगले साल दिखाना है जो पिछले साल का 1000 क्लोजिंग स्टॉक का माइनस किया था, अगले साल में 1000 को ऐड कर देना है। जो पिछले साल का 2000 माइनस किया था क्लोजिंग स्टॉक का, अगले साल में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ये ऐड कर देना। ये दोनों ओपनिंग स्टॉक के हैं। एंड नेक्स्ट ही सेज लास्ट पॉइंट, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। 5000 should be made for the goodwill valuation. Annual charge of ₹5000 means every year this amount of ₹5000 should be deducted. 5000 ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में, सारे सालों में डिडक्ट कर देंगे ये। आफ्टर दैट एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड, उसके बाद वो सेम है, एडजस्टेड प्रॉफिट, देन वेट्स असाइंड, देन प्रोडक्ट, एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू वेट्स, 20 into 120, 60, 120 and 2 lakh. Then फार्मूला क्या होता है गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फार्मूला क्या होता है? N into weighted average profit. N into weighted average profit. And what is the formula of weighted average profit? Sigma P upon sigma W. Sigma P upon sigma W. Total of product over total of weights. So total of weights 10, total of product 4 lakh, weighted average profit is 4 lakh by 10, 40,000, and goodwill is N into WAP, 3 into 40, 1,20,000. ठीक है, पॉइंट इसमें पूछने वाला तो पूछ लीजिए बेटा। If closing stock of any year is overvalued, it means the opening stock of next year is also overvalued. If closing stock of any year is undervalued, it means the opening stock of next year is undervalued. जहां भी closing stock की undervaluation की या overvaluation की बात हो, उसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर पड़ेगा, क्योंकि वही आपको ओपनिंग बना होगा। आपने ओपनिंग नहीं याद करना कि ओपनिंग क्या है, आपने क्लोजिंग याद कर लेना है। ठीक है, क्लोजिंग जो होगा वो जो अगर आप माइनस कर रहे हो किसी साल में, डिपेंडिंग अपॉन द केस की वो ओवर वैल्यू किया गया है या अंडर वैल्यू किया गया है। अगर याद ना हो, एग्जांपल ये ट्रेडिंग अकाउंट में खुद बना के देख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट के एग्जांपल डमी फिगर्स लेके अपने खुद बना के देख लेना कि अंडर वैल्यू करने से इफेक्ट क्या पड़ता है, ओवर वैल्यू से क्या पड़ता है। यहाँ ओवर वैल्यू किया था, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो जो प्रॉफिट हमने इंक्रीज किया हुआ था उसको अब हम ठीक करेंगे। ठीक करेंगे मीन उसको माइनस करेंगे। तो माइनस जो हमने किया 1000, ये अगले साल का ओपनिंग बन गया, जो कि अगले साल में प्लस हो जाएगा। जो इस साल का 2000 माइनस किया था, ये अगले साल में 2000 प्लस हो जाएगा। डन। बस याद ये रखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू करने से प्रॉफिट बढ़ गया, अंडर वैल्यू करने से प्रॉफिट कम हो गया। अब हमने उसको ठीक करना है। जब उसको ठीक करेंगे तो अगले साल में उसको रिवर्स भी करेंगे। अगर इस साल माइनस किया हुआ है तो नेक्स्ट ईयर ऐड कर देंगे, अगर ऐड किया हुआ है तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट का ही पॉइंट था, बाकी सारा कुछ वही था। वेट्स निकाल के दिए हुए थे आपको, प्रोडक्ट निकाल के, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड देन एट लास्ट गुडविल। फाइन। इसके अलावा जो हमारे सम्स पड़े हुए मैंने कहा था, सम नंबर 12 वो सेम है उसमें पॉइंट जो 13 में था।